Good evening, I'm Shreya Dhondial. What began as a rough tide yesterday is now a full-blown typhoon. The All India Muslim Personal Law Board has issued an ultimatum this evening to the Government of India to either withdraw its guidelines around Vande Mataram that makes the singing of the national song, all 6 stanzas of it, compulsory, or the Muslim Personal Law Board says the Government of India will have to face legal action. The board and its members have called the government's move unconstitutional, dictatorial and part of the BJP's communal agenda. They say Muslims who believe in only one God cannot be asked to sing a song that venerates Hindu goddesses. They say it's against Islam and against India's secular values. Now, ladies and gentlemen, the controversy around Vande Mataram has existed for the last 150 years. The song was written by Bankim Chandra Chatterjee. It was adopted as India's national song way back in 1937. The BJP has insisted that it was Pandit Nehru, as president of the CWC, who trimmed the song to appease Muslims. The decision to drop the last 4 stanzas of the song was taken because it was a salutation to Ma Durga, Lakshmi and Saraswati, and Muslims would have had a problem with that. But on the other side, ladies and gentlemen, the Congress says Tagore was the one who advised the trimming, and the CWC, that had Gandhi and Patel and Bose as members, accepted it. Bose reluctantly, but he too accepted the fact that only the first 2 stanzas will be used for national use. 150 years down the line, the BJP government has decided that all 6 stanzas with a duration of 3 minutes 10 seconds will be sung, and it will be sung before the national anthem. Sure enough, a new political battle has begun over these new guidelines, with Muslim leaders saying that the national song is being weaponized to target Muslims. The BJP, on the other hand, is calling it a correction of history. मातरम को लेके जो नई गाइडलाइन जारी की है, वो कहीं न कहीं एक नया बखेड़ा, नया विवाद पैदा करने की कोशिश की गई है। क्योंकि सरकार चारों तरफ से घेर रही थी, इसलिए उसने सांप्रदायिकता का एजेंडा छोड़ा है। सरकार तानाशाही कर रही है, सरासर जुल्म है ये, और कहाँ ये संविधान का हिस्सा है, और ना ही ये राष्ट्रीय गान है। राष्ट्रीय गान तो जन गण मन है हमारा, सब लोग सम्मान करते हैं। वंदे मातरम में जो यहाँ से जो भावना है वो मूर्ति पूजा का है, और इस्लाम इसकी परमिशन नहीं देता। नेहरू जी ने वंदे मातरम को बांटा इसी जिन्ना और मुस्लिम लीग के चक्कर में, और आज भी कांग्रेस पार्टी और उनके साथी इसी प्रकार से आज इसका विरोध कर रहे हैं। ये वंदे मातरम विरोधी है, ये राष्ट्रीय सम्मान विरोधी है। इनको बाबरी जिंदाबाद ठीक लगता है, पर इनको वंदे मातरम सांप्रदायिक लगता है, नफरती लगता है, मुस्लिम विरोधी लगता है। ये शरिया को संविधान के ऊपर रखते हैं। पूरी व्यवस्था जो है ये सरकार तोड़ फोड़ के रखना चाहती है, क्योंकि आजादी की लड़ाई में इनकी कोई भूमिका नहीं रही है, तो ये कुंठा से ग्रसित होते हैं। नेशनल एंथम केवल हमारे राष्ट्र की बातें पूरे विश्व में कहीं भी है तो नेशनल एंथम हमारे बजाए जाते हैं, लेकिन जब नेशनल एंथम बता तो प्रधानमंत्री जिसमें चलते हैं उनका अपमान करते हैं। बहुत बार से आपने देखा होगा। मोदी बाबू, अमित शाह बाबू का कोई भी प्रेडिसेसर इंडिपेंडेंस मूवमेंट में नहीं थे, उसका कोई लीगासी भी नहीं है ये नेशनल सॉन्ग का, नेशनल एंथम का। वो हर वक्त हिस्ट्री चेंज करना चाहते हैं। Therefore, I think it's about time that the real voice of India, of Bharat Mata, emerges from the remaining stanzas of this very beautiful song. And I'm very happy that this has happened. Our children will learn that our country is not only defined by its geography, it's also defined by its culture. My guest this evening, Rohan Gupta, national spokesperson of the BJP, joining us on the broadcast. Ali Daruwala is convener of the MRM, joining us on the broadcast. Kapi Srivastava is spokesperson of the Samajwadi Party, and Rashid Sharif is president of the SIMPLB. Thank you very much, Rashid. I'm going to come to you first. Rashid ji, समस्या पता क्या है? समस्या ये है कि आपको वंदे मातरम के पहले 2 स्टैंजास जो अभी तक गाए जा रहे थे उनके साथ प्रॉब्लम है, तो ऑब्वियसली लोग कहेंगे कि आपको इन एनी केस अगर पहले 2 स्टैंजास से ही प्रॉब्लम है तो बाकी 4 स्टैंजास से तो प्रॉब्लम होगी ही। आपका तो ऑपोजिशन शुरू से ही है, 2 स्टैंजा हो, 4 स्टैंजा हो या 6 स्टैंजा हो।
बिल्कुल मैडम, ये मैं ये देखना चाह रहा हूँ, ये बीजेपी जो बार मुसलमानों को टारगेट बना के वंदे मातरम पढ़ना होगा, 6 क्लास तक पढ़ना होगा। अरे भाई साहब, आप आजादी में थे कहाँ? आपको ये वंदे मातरम से, जन गण मन से क्या ताल्लुक है आपका? आपका कोई ताल्लुक नहीं। जबरदस्ती है सो इसको इश्यू बनाना है और अपनी नाकामी को छुपाना है। अपनी नाकामी को ये छुपाना है कि भाई है सो आप जो है डील कर रहे हैं। राशिद भाई, आप पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मेरा सवाल आपसे सिंपल था। जो पहले 2 स्टैंजा इंट्रोड्यूस किए गए थे एज इंडियाज नेशनल सॉन्ग, वो तो 1937 में किए गए थे। तब तो बीजेपी नहीं थी ना, तब तो पंडित नेहरू थे, तब तो सरदार पटेल थे, तब तो गांधी जी थे, है ना? इन लोगों ने डिसाइड किया, तब तो सुभाष चंद्र बोस थे, तब तो रविंद्रनाथ टैगोर थे। इन सब ने डिसाइड किया कि हम पहले 2 स्टैंजास को अपना नेशनल सॉन्ग बनाएंगे। उन लोगों ने डिसाइड किया था ना। मैं आपसे कह रही हूं, आपको तो उन दोनों स्टैंजा से भी प्रॉब्लम थी। आप तो वो भी नहीं गाते थे, उसको भी एंटी इस्लामिक बोलते हैं। अब अगर पूरा स्टैंजा गाने को बोला जा रहा है तो आपका ऑब्जेक्शन विल नॉट मैटर। मैडम, हम लोग है सो हमारे, मैं ये चीज आपको बताना चाह रहा हूँ, जो चीज हमको पसंद नहीं है, हाँ। इसमें है सो भगवानों के नामा है, इसमें है सो नहीं। जो मुसलमान जो चाहता है, ऑल इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों ऑब्जेक्शन करा? क्यों बताया? कुछ तकलीफ है बोल के बताया ना। मैडम, आज हम सारे जहां से अच्छे किए, अगर अल्लामा इकबाल की अगर हम नज़म गाते हैं तो इसमें ये लोगों को क्या तकलीफ है? दोनों भी है। आप एक मिनट देखिए, आप सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उससे कोई अच्छा वर्ड है? उससे कोई अच्छी बात है? हाँ। अब हम सुकून, हमको समझ में आता है ये सारे जहां से अच्छा उर्दू में है, और ये जो संस्कृत में है, ये चीज है पूरा है सो। अब ये वंदे मातरम जो भी है, इसके बाद में कोई मुसलमान इसको समझ नहीं सकता। सीधी बात बता रहा हूँ, जन गण मन का भी कोई पूरा उसका गाना जो वो भी तो है, बंगाली और संस्कृत में है, वो प्रॉब्लम है। वो देखिए, वो समझना ना समझना तो दूसरी बात है। ठीक है, समझना चाहें तो आप सब समझ सकते हैं। वो बंगाली संस्कृत में है। बंगाली मेरी पहली लैंग्वेज नहीं है, संस्कृत मेरी पहली लैंग्वेज नहीं है, लेकिन नेशनल सॉन्ग है, इसलिए बचपन से समझाने की कोशिश की जाती है। राशिद भाई, मैं आपसे फिर सवाल पूछ रही हूँ, आपका ऑब्जेक्शन और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ऑब्जेक्शन सीरियसली क्यों लिया जाएगा, जब आपको प्रॉब्लम पहले 2 स्टैंजा से भी थी, जिसमें मां दुर्गा, मां सरस्वती, मां लक्ष्मी का कोई मेंशन नहीं था। पहले 2 स्टैंजास में तो कोई मेंशन नहीं था, उसमें तो सिर्फ मातृभूमि की पूजा और सैल्यूटेशन हो रही है। हाँ, बाकी 4 स्टैंजास में 100% दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती हैं, लेकिन आपका ऑब्जेक्शन माना नहीं जाएगा ना, क्योंकि आपको तो प्रॉब्लम मदरलैंड से भी थी, मातरम से भी थी। हमारी सुन रहा कौन मैडम? आजकल हमारी सुन रहा कौन? हमारी आवाज दबाने की पूरी कोशिश कर रही। अरे हमारे पहले सवाल आपसे पूछ रही हूँ, हमारे साथ जो सबसे पहले सवाल आपसे पूछ रही हूँ और आप कह रहे हैं आपकी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। चलिए भाई, ग्राफिक्स लगाइए और बताइए कि क्यों मुस्लिम्स को प्रॉब्लम है, ताकि राशिद भाई को ये पता रहे दैट वी अंडरस्टैंड द अदर पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल, और एटलीस्ट वी हैव ट्राइड टू। हाँ, बोलिए राशिद भाई। ये बता रहा हूँ ना मैडम, मैं तो खुला बता रहा हूँ आपको। वंदे मातरम जो भी हम नमन करने की बात, हमारे पास ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के सिवा कुछ नहीं। किसी के सामने हम झुक नहीं सकते, किसी के सामने हम ऐसो आपको। जी बोलिए। अच्छा, चलिए, आई थिंक अली दारूवाला वांट्स टू रिस्पॉन्ड। अली दारूवाला, गो अहेड प्लीज। Shreya, let me come in and give me only 30 seconds to respond to this. When Huzur Pak Sallallahu Alaihi Wasallam was removed from Mecca, he cried, and what was his sentence? It is recorded, Muslim personal law will endorse this. Makkah, तुझे रहने वालों ने मुझे मक्का से निकाला, मक्का मुझे तुझसे प्यार है, तेरे वतन से मुझको प्यार है, सारी माओ की माँ ये मक्का है, ये काबा है. When Makkah can be their mother and Muslims can worship Makkah, so what is wrong with India? मक्का अगर तुम्हारी माँ है, दुर्गा हमारी माता है, हिंदुस्तान हमारा देश है, जब यहाँ की माँ तुम्हारी माँ नहीं बन सकती। देखिए, एक मिनट, दुर्गा मुस्लिम्स की माता तो नहीं हो सकती, ये तो अली दारूवाला जरा ज्यादा हो गया, लेकिन हाँ, देश मुसलमानों की माता हो सकती है। वो ज्यादा हो गया। मैं भी कह रही हूँ वो ज्यादा हो गया। अली दारूवाला बहुत अच्छा लगता है ये सब सुनना, लेकिन वो ज्यादा हो गया। भारत माता, तू मेरी माँ है, हम हिंदुस्तानी की माँ है। He said,
he said, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. But there's a continuation to that. He said, Lakum deenakum waliya deen. That is what he said. तेरा दीन तेरे साथ, मेरा दीन मेरे साथ. मगर हुजूर ने कहा था, जिस देश में रहते हो, जिस देश की खाते पीते हो, वहां के देश की वंदन करो, वहां के मट्टी को सलाम करो, वहां के झंडे का वंदन करो. Rashid bhai, all of us understand. What do you say? All of us understand that in Islam you can worship only one God. All of us understand that in Islam you can worship only one God. But Rashid bhai, सुनिए. उर्दू में एक शब्द है मादरे वतन, है ना? उर्दू में शब्द है ना मादरे वतन. अगर मादरे वतन is not in conflict with Islam, how is Vande Mataram in conflict with Islam? Let me explain. He will not explain to you. He will never explain to you. ये जो मद्दी गैंग, शर्जिल गैंग, भाई मैडम, यहाँ पे मादरे वतन से किसको इनकार है? मादरे वतन को कौन नहीं चाहता? मादरे वतन की कौन इज्जत नहीं करता? 5 टाइम हम लोग नमाज यही मादरे वतन पे पढ़ते, हम लोग यही सरजमीन पे निस्सिजदा करते 5 वक्त हम लोग. तो फिर वंदे मातरम में अरे क्या समस्या हमारे हो वैसा गई? तो कोई चाह नहीं सकता मैडम, ये बिल्कुल 100% है. ये वंदे मातरम जो है ना, मादरे वतन की आप बिल्कुल बहुत अच्छी बात करें. मादरे वतन, यही मादरे वतन पे 5 वक्त सिजदा करते हैं हम लोग इस सरजमीन पे. तो वंदे मातरम इससे पे भी ज्यादा कर और क्या लीजिए. चाहिए? पहले 2 स्टैंजास पे नहीं करना, सारे 6 स्टैंजास पे नहीं करना, तो पहले 2 पे ही कर लीजिए. बट आई थिंक द बीजेपी वांट्स टू कम इन. एक मिनट, चलिए बीजेपी को अब लेट्स ओपन दिस डिस्कशन अप. You know, I want to ask from Rohan Gupta. Rohan Gupta ji, good evening to you. I want to ask you, it's 150 years of the national song. We all agree to it. And our viewers also are intelligent viewers, and they know that while the Constitution gives status and protection to the national anthem, it does no such thing for the national song. Having said that, I love Vande Mataram. I want to ask you, in its 150th year, why did the BJP suddenly one day wake up, renew guidelines and say कि भाई 2 stanzas is too little, पूरे 6 stanzas गाओ, knowing fully well that the Muslim community in this country will have a problem with it, because the 4 stanzas that you have included back have mentions and salutations to Ma Durga, Ma Saraswati and Lakshmi. Now 3 or at least 2 people or 3 people in this panel will not have a problem with it, but 1 person will have a problem with it, and you knew who that person is going to be. So is this provocation and nothing else? Shreya, how can respecting national song is a provocation? You tell me. It's really surprising. We are having this kind of debate. That itself is unfortunate. No debate is unfortunate. No, Rohan Gupta, no debate is unfortunate. Questions need to be asked. In a democracy, questions need to be asked. I will tell you why. I'll tell you why. I am having the national anthem of UAE in front of me. I'll just read few lines, you know. Leave my country, the unity of our Emirates lives. You have lived for a nation whose religion is Islam. Guide is Quran. I made you stronger in God's name. Oh my homeland, oh my country. I'm just reading the few things. You tell me, does any citizen has right to change the words or take objections to the words of national song or national anthem? The answer is no. No. National anthem has no religion. National song has no language. It's no religion. It is about the country. Then one more thing. You are absolutely right in your question that if they had problem with the first 2 stanza, right? It was because of the secularism. Congress party ensured that out of 6, only 2, so that people won't have objection. But till now, you have done so many debates, Shreya. You tell me one guy from Muslim community, he was ready even for 2 stanzas of Vande Mataram. So it's not about 6 stanzas. It's about the mindset. कि नहीं वंदे मातरम तो हमको नहीं गाना रे भाई, क्यों? नेशनल सॉन्ग है ना. आपको तो नेहरू जी ने दिया था, गांधी जी ने दिया था, उसको तो गा लेते. आपने सवाल का जवाब नहीं दिया. अच्छा, हाँ, उसको तो गा लेते. I agree with you. So their objections will not count. लेकिन my question to you still remains the same. Why, after 150 years, have you decided to include the other 4 stanzas as well? What was the logic behind it? What is the thinking behind it? See, it is our, you know, it's our glory. हमारी संस्कृति है, हमारा हेरिटेज है. उसकी ग्लोरी को वापस लाना पड़ेगा. अगर कांग्रेस पार्टी ने, because of the secularism, because of their appeasement politics, they have cut the 4 stanzas, and if we bring back the glory of our national song, what is wrong in it? Why are you attaching community? It has to be country first. No religion. The country first and then religion. You know, that's you are being careful when you say Congress party and not Pandit Nehru.
And you are taking the right stand. Can we just put on our screens who all were part of the CWC when the decision was taken in 1937 Absolutely. to It's trim not about one person. to trim the national song to just 2 stanzas? Rabindranath Tagore had actually, ladies and gentlemen, suggested it. He was not part of the CWC, but he was the intellectual guide to the CWC. And then everyone else in the CWC, which means Sardar Patel, which means Jawaharlal Nehru, which means Subhash Chandra Bose. Subhash Chandra Bose was reluctant. He actually wanted all 6 stanzas to be included. Yes. But then he had a talk with, with Rabindranath Tagore, and then he agreed to what what Rabindranath Tagore and his point of view was. Mahatma Gandhi was a CWC member when that decision was taken. Maulana Abul Kalam Azad was a CWC member when that decision was taken. So the decision was not just Nehru's. I mean, Nehru gets painted here as the villain. I just need to make it clear that Nehru was not the one who took the decision. It was a collective decision. Anyway, Kapish Srivastav ji, please come in here. Does the Muslim Personal Law Board have any reason to threaten the government of India and say, take back your guidelines or we will take you to court? The fact is कि आप तो पहले 2 stanza नहीं गाते थे. अब आप 6 stanza में problem कर रहे हैं. Why will the courts also, listen to you? And what exactly will be your dalil in court? I'm asking you this question because the Samajwadi Party is supporting what the All India Muslim Personal Law Board is saying. देखिए, बहुत पहली चीज तो आपको ये कह दें कि कोर्ट जाने की बात कहना कोई धमकी नहीं होती. ये तो लीगल है. अगर आप कह दीजिए कि इनलीगल है तो मैं चुप हो जाऊंगा. ठीक है, नहीं बिल्कुल लीगल है. बिल्कुल लीगल है. ये तो हमारा संविधान तय करेगा. हमारी संवैधानिक संस्था है. हम लोग बांटे हुए हैं 3 चीजों में. उस हिसाब से न्यायालय जो है स्वतंत्र मानी जाती है. न्यायालय बताएगी. इसमें कोई धमकी नहीं. मैं दूसरी चीज आपको ये कह रहा हूं कि रोहन भाई पता नहीं पेशे से एडवोकेट हैं या नहीं है, मैं नहीं जानता, लेकिन वो एक वकील अच्छे हैं अपने पार्टी में. मैं इसलिए उनकी तारीफ कर रहा हूं कि कुछ दिन पहले तक ये इसी के विरोध में बोलते थे, आज पक्ष में बोल रहे हैं. अच्छा लग रहा है. मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ. मैं सिर्फ देश के खिलाफ कर रहा हूँ कपिश भाई. मैं देश के खिलाफ नहीं जाऊंगा. नहीं, देश के खिलाफ इससे पहले थे. इसके मतलब नहीं, बिल्कुल नहीं. मैं देश के साथ खड़ा था जब आप वंदे मातरम के खिलाफ बोलते थे. तो मैं आप वंदे मातरम के खिलाफ बोलते रहे. कहलवाइए तब भी मैं कह रहा था. और आपकी कल वंदे मातरम के खिलाफ बोलते रहे. वंदे मातरम बोलने को तैयार नहीं थी कपिश भाई. बोलते रहे. उन्होंने वीएनडी कहा. वंदे मातरम को वीएनडी कहा. ये मानसिकता है आप लोगों की. ये मानसिकता ना मानसिकता नहीं है. इसमें डिबेट पे नहीं आना चाहिए आपको. कपड़े के तरह विचार आप बदलते हैं, हम लोग नहीं बदलते. बिल्कुल. अच्छा चलिए, आप दोनों अपनी बहस सुनिए. 15 मिनट बाद शो खत्म हो जाएगा. उसके बाद आप दोनों फोन उठा के बहस कर लीजिएगा. कपिल जी फर्स्ट, I mean, just complete your point. क्योंकि आप लोग कह रहे हैं that the national song is being weaponized against Muslims. This is the BJP pushing its communal agenda. I want to ask you why. उसका कारण है. हाँ. मैं एक बात कह रहा हूं कि हमारे संविधान में अभिव्यक्ति की आजादी है और ये मौलिक अधिकार है. आप मौलिक अधिकार में किसी के जबरन मुंह में कुछ डाल करके आप नहीं कहला सकते हैं. और अगर विधि भी आप इस तरीके बनाते हैं कि मौलिक अधिकारों को न्यून करती है तो वो प्रारंभ से ही शून्य हो जाएगी. यह घोषित करने का सुप्रीम कोर्ट काम करेगा और वही पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है. दूसरी चीज, मैं अपने मित्र से एक बात पूछना चाहता हूं कि जरा ये बताइए, वंदे मातरम में देश कहाँ है? कंट्री कहाँ है? वंदे मातरम में देश कहाँ है? मातरम क्या चीज हुई? मातरम क्या बात कर रहे हैं आप? माँ की वंदना. वंदे मातरम माँ की बात है. Salutation to the motherland. It's a salutation to your motherland. अब तो कपिश जी आप कुछ और ही बात कर रहे हैं अब तो. हाँ, बिल्कुल कुछ नहीं बात कर रहा हूँ. मेरी बात सुन लीजिए. अच्छा चलिए वो बात अधूरी रह जाएगी. बिल्कुल. Everyone will keep quiet. Kapish ji will complete his point. Kapish ji, go ahead. मैं स्पष्ट ये आपको कह रहा हूँ कि मातरम का मतलब होता है माँ की पूजा करना. हाँ. अब ये निर्वचन का मामला है कि कौन क्या निर्वचन करेगा. मुझसे पूछिएगा तो मैं कहूंगा कि माँ की वंदना का मतलब देश की वंदना है. हाँ. वही आप दूसरे से पूछिएगा तो वो दूसरी चीजें कहेगा. मैं एक बात पूछना चाहता हूं. हमारे मित्र बड़े काबिल बैठे हुए हैं दोनों लोग. मुझे सिर्फ इसका अर्थ बता दे. जो 2 पैराग्राफ है उसी में पूछ रहा हूं कि ये सुब्रत ज्योत्सना पुलकित यामिनी फुल्ल कुसुमित द्रुमदल सोगनी सुहासिनी सुमधुर भाषणी सुखदय मलया मातरम वंदे मातरम जय. इसका अर्थ बता दीजिए.
इसका अर्थ बता दीजिए, रोहन गुप्ता जी अर्थ पुष्पा की बताइए। तरह जो खिली हुई है वो हमारी मातृभूमि है। हम सबको मिलके हमारी मातृभूमि की प्रार्थना करनी चाहिए। दैट्स इट। आप क्या बात कर रहे हैं? कमल पे आप सवार मातृभूमि का जिस शब्द देवी की मतलब आ पूजा रहा है। की जाती है, अरे, उसकी अरे, स्तुति अरे, में क्या कही बोल रहे गई हैं है। ये? अरे और इनको गुरुदेव, छोड़ आप दीजिए। गलत सुन रहे हैं। इनका आप कुछ नहीं गलत हो सकता है। इंटरप्रेट कर रहे हैं। गुरुदेव, और लेकिन बाद क्या में इनको छोड़ दीजिए। वही दुर्गा कुछ जी के नहीं हो लिए सकता है। स्पष्ट किया गया है मतलब आप आगे ये के कहेंगे उसमें। कि देश का राष्ट्रगीत इसलिए मैं किसी आपको धर्म और साफ जाति कह रहा को हूं, समझ के करे, तो आप भारतीय नेहरू जी पे जनता सवाल पार्टी उठाइए। कम्युनल एजेंडा इसका मतलब चला आप रही कांग्रेस है। पार्टी भी सवाल ये उठा रहे जानती हैं। है कि आप कांग्रेस पार्टी भी सवाल उठा रहे हैं। आप तो उनके साथ गठबंधन में हैं। आप किस पार्टी के साथ गठबंधन है कपिश भाई? आप कौन सी पार्टी से गठबंधन में हैं? दृष्टिकोण है। आप कौन सी पार्टी से गठबंधन में हैं? कपीश जी, कपिल देन जी तो कौन सी एक मिनट रुक पार्टी से जाइए, गठबंधन में हैं? एक मिनट रुक जाइए। कपीश जी, देन तो यू आर क्रिटिसाइजिंग योर ओन एलाई द कांग्रेस पार्टी, बिकॉज पहले दो स्टैंजास तो उन्हीं लोगों ने इंट्रोड्यूस कराए थे एज इंडियाज नेशनल सॉन्ग इन मैं 1937। आपको बार बार कह रहा हूं कि ये निर्वचन का मामला है। हाँ, आप ही कुछ चीजें प्रोज होती है, पोएम होती है, उनको अलग अलग तरीके से बच्चे लिखते हैं। हाँ। और गलत नहीं होती। आधा गिलास भरा हो, ये देखने का नजरिया है। तो what कि is अगर हम your कहें point? आधा भरा है, आप कहें आधा खाली है। नहीं तो व्हाट इज ये योर दो पॉइंट? नजरिए की बात है। अरे पॉइंट तो मेरा रखिए ना। पॉइंट ये है कि नजरिए के आधार पर हाँ। जो संविधान में अभिव्यक्ति की आजादी दी गई है, उस पर आप किसी को प्रेशराइज नहीं कर सकते हैं। हाँ। ये मेरा कहने का अर्थ है। और ठीक है। वो यही कर रहे हैं हाँ। क्योंकि इनको कम्युनल एजेंडा चलाना है। हाँ। इनको हिंदू मुसलमान करना है। हाँ। हम ये बात पूछे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, यूनान रोम मिस्र सब मिट गए जहां से, मगर अब तक है बाकी नामो निशा हमारा। कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, और सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। आज ये सब अपना जिंदगी रिवीजन में करके आए हैं। जाते हैं। आज सब अपना रिवीजन करके आए हैं। हाँ रोहन गुप्ता बोलो। कपिश भाई, बोलिए। आपने कहा कि ये दो जो स्टांजा है उसमें फूल की बात की गई है तो कम्युनल कर दिया। हाँ। कौन थी, किस सरकार ने ये दो स्टांजा पास किए थे? तब कौन थी सरकार? कौन थी? कह रहा हूं कि आप नहीं, कौन सरकार थी? अधिकार नहीं है। नहीं, कौन क्या सरकार ये थी? क्या बहस हो भी क्या रही है? मैं चलिए रुक बात जाइए, कर रहे रुक जाइए। राशिद भाई, अब मुझे आई एम श्योर यू हैव रेड द गाइडलाइंस, क्योंकि अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अगर कह रहा है कि गवर्नमेंट को कि आप ये गाइडलाइंस विड्रॉ करिए, नहीं तो हम कोर्ट में जाएंगे, दैट इज व्हाट द ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इज सेइंग एंड यू आर पार्ट ऑफ दैट. सो आई हैव रेड द गाइडलाइंस and nowhere in the guidelines, I have read it in fact twice, and nowhere in the guidelines is it making compulsory for anyone to sing the 6 stanzas of the Vande Mataram. But what is compulsory is when it is sung, we all have to stand up and pay our respects. I will not say the Muslim community, I will say Muslim clerics, because right now the only objection I've heard is from Muslim clerics and the All India Muslim Personal Law Board, which according to me doesn't represent the entire Muslim community in this country. I want to ask you, therefore, Rashid Bhai, that if the guidelines are not making it mandatory for you to sing all the 6 stanzas, but it is making mandatory for you to stand up in respect, will you at least do that? मैडम, ये हमारे पे ये चीजें ये करना क्या है मैडम? ये अरे वंदे मातरम, अगर हम इस चीज को मानना नहीं चाहते तो जबरदस्ती क्यों? और हमारा संविधान हमको इजाजत देता है कि हम अपने इस्लाम पे चले, हम अपने शराई पे चले। हाँ। ये अगर हमारे मौलाना अगर खिलाफ है, ऑल इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अगर इसके खिलाफ है, अगर अगर ये लाजिमी होता है, तो अगर उन्होंने कोर्ट को जाना चाहते थे तो हुकूमत उनसे बात करना चाहिए था, हुकूमत उनको बताना चाहिए था, हुकूमत उनको बुलाना चाहिए। क्या किसी को बगैर किसी इजाजत के अगर जबरदस्ती थोपने की अगर बात हो रही है तो ये मानने वाले कोई है ही नहीं। Okay. चाहे है सो आप कुछ भी कर ले, जो चीज हमको पसंद नहीं है, हम सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारे में आपको क्या तकलीफ है? ऑल इंडिया इज माय ब्रदर एंड सिस्टर में आपको क्या तकलीफ है? किसी को कोई तकलीफ नहीं है रशीद भाई, यहाँ पे किसी को कोई तकलीफ नहीं है। सुनिए, और यहाँ पे the point is that this show is about getting everyone's point of view in. आप प्लीज अंडरस्टैंड करिए कि यहाँ मैं किसी को विलेन बनाने के लिए नहीं लेके आती हूँ, मुस्लिम कम्युनिटी को या नेहरू या किसी को भी, ये सबके पॉइंट्स ऑफ व्यू सुनना है। आई हियर व्हाट यू आर सेइंग, यू आर सेइंग दैट पेट्रियोटिज्म कैन नॉट बी इम्पोज्ड। मैं समझ रही हूँ आप क्या बोल रहे हैं, और क्योंकि जो आप बोल रहे हैं वो कोर्ट्स ने भी बोला है, ठीक है, कोर्ट्स ने भी बोला है। 2017 में जो मामला है वो मद्रास हाई कोर्ट में गया था, उसके कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं। माय क्वेश्चन
to you was simple. You have the right to silence. The court is giving you the right to silence. If the guidelines are saying that if Vande Mataram is being sung, everyone has to stand up. That is mandatory. Nowhere is it saying the singing of the entire song is mandatory for everyone. गाना है तो पूरा गाना है. 2 stanza नहीं गाने, 6 stanza गाने हैं. But as far as I understand this, you have the right to silence, but you need to stand up. क्या खड़े होने में भी प्रॉब्लम है रशीद भाई? क्योंकि अगर है तब तो फिर प्रॉब्लम है. तो फिर सबको मालूम है कि ये मुसलमान है. ये बताना चाह रहे हैं कि ये है सो इज्जत नहीं करता वंदे मातरम की. ये बताना है आपको कि देखो ये है मुसलमान, ये वंदे मातरम की इज्जत नहीं कर रहा, ये ठहर रहा नहीं, ये बैठा हुआ है. ये क्यों ये सब तमाशे? अरे मैं अपनी शरिया पे चल रहा हूं, मेरे को संविधान इजाजत देता है, मैं नहीं ठहरना चाहता. खलास, मैं ठहरना नहीं चाहता. भाई वंदे मातरम को है भाई सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा. खड़े होने में क्या प्रॉब्लम है? आप ना गाइए, लेकिन देखिए आपको तो प्रॉब्लम पहले तो स्टैंजा से भी थी ना. आप तो कहते हैं कि शरिया डिडंट अलाउ यू टू सिंग द फर्स्ट 2 स्टैंजास आल्सो. ये जबरदस्ती क्या है? ये मेरे है ना. मैं आपसे पूछ रही हूँ खड़े होने में क्या समस्या है? ये जबरदस्ती क्या है मेरे ऊपर? नहीं. अच्छा ठीक है, आप खड़े होने में भी समस्या आप कह रहे हैं मुझे? ये डिक्टेटरशिप है मैडम. ये मैं बता रहा हूँ, ये जबरदस्त नहीं है. ये डिक्टेटरशिप है. मैं ये नहीं मानता हूँ कि मैं ऐसा सुकून में हूँ. अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सुकून में हूँ. सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा दिल से गाता हूँ. और हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा बिल्कुल बेहतरीन वर्ड है. चलिए, अल्लामा इकबाल लिखे सो हम इस पे बहुत खुश हैं. अली दारूवाला वांट्स टू कम इन. अली दारूवाला वांट्स टू कम इन. जल्दी जल्दी बोलिए, अब सब टाइम खत्म हो रहा है. हाँ. Yeah, correct. To begin with, Muslim Personal Law Board is the board which was against we coming and passing the bill of triple talaq. These are the people who are against our nation. और ये जो खड़ना नहीं चाहते, what I will complete my sentence, which you could not say as an anchor. जो खड़ना नहीं चाहते, जो एहतराम नहीं करना चाहते, ऐसे लोगों को देश से खदेड़ के बाहर निकालो. नहीं चाहते. I will not allow this. I will not allow this. No. They have a different point of view. But having a different point of view doesn't make you anti-national. ये गलत है. अली दारूवाला, you are a sensible guest. I don't expect this from you. देश से छोड़ के जाने को किसी को नहीं बोलेगा कोई इस शो में. ये हम सबका देश है. I'll tell you why. Let me finish my logic over here. When someone is singing, someone in the praise, if you cannot sing, as you said, I respect and I agree what you said. But if he's not going to show respect, he's not going to stand up, he's going to mock this song. Do you think they deserve to sit next to you, or they deserve to sit next to me? No, they do not deserve to sit next to us. No, Alu Daruwala, but no Indian deserves to be told in this country that if you don't sing the Vande Mataram, please get out. Not allowed. Not okay, not allowed. हाँ, कपिश जी बोलिए. जल्दी, 20 सेकंड है, उससे ज्यादा नहीं. या जी बहुत स्पष्ट की बात मैं कह रहा हूं आपको कि अगर वाकई खड़ा होना ही अभिवादन के लिए जरूरी है, ये दिखाने के लिए कि हम इस वतन के लिए हम शहीद होते हैं, तो शहादत तो मुसलमानों ने तमाम दी. बावजूद इसके मैं इनको कहना चाहता हूं कि 2 काम आप रोहन भाई कर दो. एक तो ये कि इसको राष्ट्रगान बना दो, सब खड़े हो जाएंगे. और दूसरी बात ये कहता हूं कि गाय को राजमाता घोषित कर दो, राष्ट्रमाता. इसमें देरी क्यों कर रहे हो? कटवा क्यों रहे हो? क्यों कटवा रहे हो? क्यों बीफ के कंपनियों से चंदा ले रहे हो? ये सब आपको बताना पड़ेगा. रोहन गुप्ता, 20 seconds to respond on the राष्ट्रगान बिट. मैंने जब स्टार्टिंग में आपसे बात की, मैंने यही कहा कि डिबेट आप देखिए क्या बातें कर रहे हैं. अगर 2 स्टांजा से प्रॉब्लम है, उसमें उन्होंने कांग्रेस को भी बोल दिया ये कम्युनल. आप सोच लीजिए कि जिस कांग्रेस की ये लोग दुआई देते हैं उसको भी कम्युनल बोल दिया. अब आप बोल रहे हैं कि खड़ा होने उसमें भी अगर आपत्ति है, तो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ माइंडसेट. यू कैन नॉट पुट रिलीजन बिफोर द कंट्री. यू हैव टू फॉलो. राष्ट्रगीत है तो है, आपको उसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए. शरिया की बात कहां से आ गई? सबसे पहले देश, उसके बाद धर्म. यही मानसिकता है जिसका प्रॉब्लम है, और यही मानसिकता का शिकार आज भी जो कुछ लोग हैं अपनी राजनीति की दुकान चलाने के लिए देश को धर्म के पीछे लेके जा रहे हैं. उसी से आपत्ति है. मानसिकता को हटाने के लिए वंदे मातरम सबको मिलकर गाना जरूरी है. वंदे मातरम. Okay, we leave it there. Time khatam. I'm sorry. I'm sure Kapish bhai wants to say something, लेकिन मेरा समय खत्म हो गया है. Thank you very much. Question still remains. Can patriotism be imposed? One thing is very clear. The government is in no mood to withdraw the guidelines, which means the matter will now go to court, as the All India Muslim Personal Law Board has said that they will be knocking at the doors of the court. We'll leave it there for
the moment. Thank you very much, ladies and gentlemen. Rohan Gupta, Ali Daruwala, Kapish Srivastav, Rashid Sharif, all gentlemen, no ladies here except me. But I'm just taking a break. I'll be back in a bit. Do stay with us.